It started in 1990. Okay, the market was being ramped up regularly. He was growing as though he alone had this Midas touch, and anything that he touched went up, and he was this cult figure in the market. I mean, you have to know what a superstar he was. You know, his chairman H.P. Ranina called him the Amitabh Bachchan of the capital markets, and that's the kind of following he had. If you remember, when he was arrested, there was this huge crowd. It's never happened since, you know. It was one of the biggest things ever. Somebody in the RBI told me that he had once been called to meet the RBI governor, and as he was going up the lift, the security people wanted to know what should they buy. Okay, so there was nothing like, he knew that he was playing with some money. Okay, and there was a lot of speculation about what that money is. So some people said it's underworld, so you know, lay off, and somebody is getting money from abroad, so no questions asked. There were some who said it was political money. So that there was this unlimited supply of money that was available to him was fairly well known in the market. Speculation was, where is it coming from? And nobody imagined that it could be as simple as just dipping into India's biggest bank and taking the money from there. Look back, it was so simple. Okay, the markets were completely primitive. There was no automation either in the capital market or in the GSECs and government securities. Absolutely. They were old-fashioned ledgers, and people in the capital market, you know, it's seen as a stock market scam, but it wasn't. It was really a banking and government security scandal. What happened is that a whole lot of brokers in the market discovered there's huge money to be made in government securities because interest rates were fluctuating, and then the secondary market prices used to change. Indian banks used to hold on to whatever they bought and keep it in their books forever, you know, to maturity. The foreign banks knew how to secondary market and make a lot of money. So they started talking to the brokers because they needed an interface between the Indian bank and the foreign bank. And the brokers quickly realized that Indian banks are blank, so they virtually took over the treasuries. What he did is he explained to State Bank of India that I could make you a lot of money. And State Bank indeed made huge treasury profits. Okay, a lot of their officers got into serious trouble, but he helped them. And many Indian banks who were with Harshad made treasury profits thanks to them. The broker was literally running treasury management for the public sector banks, right? Now, because systems were so antiquated, obviously the broker couldn't do transactions. It had reached a point where, you know, the broker could put checks into his own account and the banks were turning a blind eye to it. So Grinlace was offering this facility to Harshad. A lot of other banks were doing it, and there were no questions asked. It was all moving fine. You know, he was making money over there. Okay, we don't have whether he was doing this all the time, but we suspect that he was doing it all the time, where he would borrow that money and pay it back. So even when he got caught, I don't think the intention was that he was not going to return that money at all, because he was making so much money on the market. He had assets, and even after he was caught, he had 2,000 crores in those days, 92. Okay, so he intended to return the money, and the point was that he was borrowing it illegally, and nobody knew. What the reforms that happened in 91, right? So there was a lot of euphoria. The government was happy to believe that what they had done had led to the big boom in the markets. So when suddenly they're faced with the scandal, obviously they were shocked. And I think you had Dr. Manmohan Singh there, and he was genuinely shocked at what was going on. And so I think what happened is that you didn't have any political involvement. They were clueless. There was this big noise in Parliament. There was all this talk about Bada Sand and what he was doing. So they wanted to know, who the hell is this guy? How is he making so much money? And why don't we know about it, right? So every single party was interested in figuring out what is the scam, how is there such easy money, and need to get to the bottom of it. Because I know that so many people who were then in the Joint Parliamentary Committee used to come to us with tutorials. What exactly is happening? सुचेता जी बता रहे कि 1990 के दशक में हर्षद इतने ज़ोरदार तरीके से पैसे कमा रहा था कि जैसे उसे लगने लगा था कि वो जिस भी चीज़ को हाथ लगाएगा वहाँ से वो पैसा निकालेगा। जब हर्षद मेहता गिरफ्तार हुए थे तब उन्हें देखने के लिए इतनी भीड़ जमा हो गई थी, जैसे किसी फिल्म स्टार के लिए देखने के लिए भीड़ जमा हो जाती है, इतनी भीड़ हर्षद को देखने के लिए जमा हो गई थी। जब हर्षद के आरबीआई में इंक्वायरी चालू हुई और हर्षद आरबीआई गवर्नर से मिलने के लिए आरबीआई ऑफिस गए थे, तब वहाँ के सिक्योरिटीज़ के लोगों ने हर्षद को पूछा था कि सर हम कौन से शेयर खरीदें और किस शेयर में इन्वेस्ट करें, कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करें। मतलब आप देख सकते हैं हर्षद की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी थी। उस समय सबको पता था कि हर्षद किसी के तो पैसों के साथ खेल रहा है।
हर किसी को लग रहा था कि हर किसी के मन में ये प्रश्न उठ रहा था कि हर्षद के पास ये पैसा कहाँ से आया। कोई कह रहा था कि ये पैसा अंडरवर्ल्ड से आया है, कोई कह रहा था कि ये पैसा विदेशों से आया है, और कोई कह रहा था कि ये पैसा बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन का पैसा है। हर्षद के पास इतना पैसों का सप्लाई था, ये सबको पता था, लेकिन वो पैसा कहाँ से आ रहा है ये किसी को पता नहीं था। और किसी को लगा भी नहीं था कि हर्षद इतने आसान तरीके से पैसा लाएगा, इतना सारा पैसा मार्केट में लगा के उससे और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। इतना आसान तरीका किसी को नहीं लगा था। हर्षद ने वही तरीका अपनाया। उस समय मार्केट और बैंक का प्रोसेस बहुत धीरे चलता था। उस समय कंप्यूटर भी नहीं थे, तो बहुत सारे अपडेट लेट होते थे। इसी का फ़ायदा हर्षद जैसे ब्रोकर्स ने उठाया। बहुत से लोगों को लगता था कि ये शेयर मार्केट स्कैम था, पर नहीं, ये बैंकिंग और गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्कैम था। 90s के समय बहुत सारे ब्रोकर्स को पता लग गया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। बैंक्स को भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदनी थी। तब बैंक्स ने ब्रोकर के साथ कांटेक्ट किया, क्योंकि उन्हें मिडलमैन चाहिए था सिक्योरिटीज़ खरीदने के लिए, बैंक के लिए काम करे। ब्रोकर्स को भी पता चला था कि भारतीय बैंक को आसानी से अंधेरे में रखा जा सकता है, तो उसी चीज़ का फ़ायदा ब्रोकर्स लोग ने उठाया। बैंक्स ने भी इस तरीके से बहुत सारा पैसा कमाया, और हर्षद के जो कनेक्टेड बैंक थे उन्होंने तो और भी ज़्यादा पैसा कमाया था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के तरीके से। बैंक इतने अंधेरे में हो चुके थे उस समय कि ब्रोकर्स ही बैंक के ट्रेजरी मैनेजमेंट करने लगे थे। मतलब ब्रोकर्स की पावर इतनी बढ़ चुकी थी। सुचेता दी और कहती है कि हर्षद मार्केट से पैसा कमा रहा था, वो बैंक का पैसा यूज़ कर रहा था, मार्केट में डाल रहा था, वहाँ से प्रॉफिट कमा रहा था और बैंक को पैसा वापस कर दे रहा था। जब हर्षद पकड़ा गया तब भी वो SBI का पैसा और बाकी बैंक का भी पैसा वापस करने वाला था। वो किसी बैंक का पैसा अपने पास रखने वाला नहीं था। ये बात खुद सुचेता दलाल कह रही है। मतलब हर्षद का इंटेंशन ऐसा नहीं था कि मैं पैसे, आज के जो स्कैमर है उस तरह हर्षद का इंटेंशन नहीं था कि मैं पैसा डुबा के चला जाऊँ, विदेश भाग जाऊँ, ऐसा नहीं था। हर्षद सभी बैंक के पैसे वापस करने वाला था, क्योंकि 92 में जब वो पकड़ा गया तब भी उनके पास 2000 करोड़ रुपए पड़े थे। तो हर्षद SBI के भी पैसे वापस करने वाला था और बाकी सारी बैंक के भी पैसे वापस करने वाला था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनका गुनाह यही था कि वो बैंक का पैसा गलत तरीके से यूज़ कर रहे थे और किसी को इसके बारे में पता भी नहीं था, तो यही उनका गुनाह था। और दूसरा गुनाह यह था कि वो पॉलिटिकल कनेक्शन में फंस गए। हर्षद के खिलाफ इतनी कार्रवाई तेज भी इसी वजह से हुई क्योंकि संसद में इस वजह से हंगामा हुआ। सभी पॉलिटिकल नेताओं को जानना था कि हर्षद इतना पैसा कहाँ से कमा रहा है, इतना ऐसा कौन सा आसान तरीका है कि जहाँ से हर्षद इतना पैसा ला रहा है और उससे डबल पैसा कमा रहा है। सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को जानना था। इसी वजह से संसद में हंगामा हुआ और इसी वजह से सरकार के ऊपर प्रेशर भी बना और इसी वजह से हर्षद को ज़्यादा सताया गया, हर्षद को ज़्यादा जेल भेजा गया। उसके बाद केतन पारेख का भी स्कैम हुआ, सत्यंक का भी हुआ, आज तो नीरव मोदी माल्या का भी है, लेकिन किसी को इतना सताया गया नहीं है। लेकिन हर्षद मेहता को इसी वजह से इतना सताया गया, इसी वजह से उनको जेल में रखा गया, क्योंकि उनके पॉलिटिकल कनेक्शन से, पॉलिटिकल आरोपों से। सभी पार्टी के सभी नेता, सभी लीडर्स, संसद वाले भी, संसद बाहर वाले भी इस काम में इंटरेस्ट ले रहे थे। सबको जानना था कि हर्षद ऐसा कौन सा तरीका यूज़ कर रहा है जिससे वो इतना पैसा कमा रहा है। इसीलिए सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ा और हर्षद को इतना प्रॉब्लम। जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी गठन हुई हर्षद के स्कैम की जाँच करने के लिए, तो उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य सुचेता दलाल के पास आते थे स्कैम 92 की टेक्निकल बातें समझने के लिए। आप समझ लीजिए पॉलिटिकल लोगों ने इतना इंटरेस्ट लिया था इस स्कैम में, इसी वजह से हर्षद मेहता इतने प्रॉब्लम में आए, उनको इतना ज़्यादा सताया गया, उनको जेल हुई। मैंने आपको सुचेता जी का अंग्रेजी वाला पूरा इंटरव्यू हिंदी में ट्रांसलेट कर सुनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और वीडियो को शेयर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और सब्सक्राइब करने के लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, ये क्लिक करना जरूरी है, क्योंकि आगे भी मैं हर्षद मेहता के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ और इससे पहले भी वीडियो बनाई है। अगर आप मेरे चैनल पर जाए तो प्लेलिस्ट सेक्शन में हर्षद मेहता स्टोरी के नाम से एक प्लेलिस्ट सेक्शन है, वहाँ पर आज तक के हर्षद मेहता के ऊपर मैंने बनाए सारे वीडियो अवेलेबल है। वो वीडियो आप देखिए, वो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फिर चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आगे भी वीडियो बनाने वाला हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी आगे वाली वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।